Hello, good morning students. Welcome back to the third lecture of science of chapter number 8th of class 9th. So in this lecture in class 9th chapter number 8 we will discuss the important topics of this chapter which is very important for examination point of view also. So that is equations of motion. So these equations of motions, how can it be obtained by the graphical method? So first equation of motion is V, that is V is equal to U plus AT. This equation is also known by equation of velocity time relation. So हमें हमेशा रिमेंबर रखना होगा कि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी याद रखना होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन, this is also known as equation of position time relation. So you will have to remember these equations by their names so that directly they don't ask in the exam. So they may ask that derive the equation of position time relation. So if you know exactly that which is called the equation of position time relation, then you will be able to derive. So today we will derive this first equation of motions, equation of velocity time relation, then after second. So let's see how we will derive. For this purpose, just we take a graph similar to the, so this will be time, this we can name it as O, and suppose this is the velocity that is going, then we will just draw the line and connect it to the time axis. Okay, you can also take it like this, right? Now we will draw a line from this position and make it parallel to this line. Now this forms a rectangle. Now we will name it as this, as A, this one as B, then D, and this we will take it as O. We can take this as time T, okay, and we can name it as C, right? So, and this is the final velocity, this is the final velocity which reaches to B, and this is this one AO, we will take it as U, okay, this is T, and this whole we can just take it imaginary line. So from this will be, this is velocity, okay, so it is from here to here, it is final velocity, okay. So from this graph we have to draw, we have to derive this equation. So you can see here the slope of this, slope of the velocity time graph, you can write slope of the velocity time graph, slope of the velocity time graph is equal to AB is equal to acceleration. यानी ये जो स्लोप AB जो है वो है हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और AB जो है एक्सेलरेशन के बराबर है, राइट? तो हम स्लोप को क्या देंगे?
स्लोप इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना ये स्लोप उठा है और कहां तक उठा है, ये हम देख लेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू लिख देंगे राइज अपॉन रन, कहां तक ये है। तो राइज हम किसको बोल सकते हैं, राइज मीन्स कितना उठा हुआ है ये, तो दैट इज BD एंड रन मीन्स कहां तक ये गया है, मतलब A से D तक ये है, तो ये हो जाएगा AD, करेक्ट। उसी तरह से हम अब इसकी कुछ वैल्यू हम लिख लेंगे। हम जैसे जानते हैं कि BC को हम यहां पर साइड में लिख लेते हैं कि BC को हम लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, और BD इज इक्वल टू, चूंकि हमें यहां BD फाइंड करना है इसलिए हम BD ट्राई करेंगे फाइंड करने का। तो BD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू दिस BC माइनस CD, ओके। तो यहां पर हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो स्लोप है BD अपॉन AD, हम BD का वैल्यू रख देंगे क्या, BC माइनस, यहां पर हम लिख सकते हैं साइड में करके कि वी नो और वी कैन राइट, ओके। Just write over here. So we can write BD is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, BD is equal, sorry, BC is equal to हम लिख सकते हैं, BC is equal to BD plus DC, BD plus CD या DC। और इसी तरह से हम यहां पर स्लोप है BD, इसलिए BD का वैल्यू क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो BC माइनस ये हो जाएगा इसमें, तो माइनस CD इज इक्वल टू BD, करेक्ट। तो हम इसको अब क्या करेंगे, ये स्लोप वाले में इसका वैल्यू रख देंगे, राइट। सो इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ओके। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां पर रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है, स्लोप इज इक्वल टू, वी नो दैट इज नथिंग बट हियर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हम लिखेंगे AB, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा ये, AB इज इक्वल टू, तो यहां पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BD अपॉन AD। अब एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ADCO जो बन रहा है या AOCD बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, इसके OC के, और ये इक्वल भी होता है, यू नो इट कि रेक्टेंगल जो होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो है इसके इक्वल होगा और ये साइड जो होगा इसके इक्वल होगा। तो हम AB इज इक्वल टू क्या है हमारा, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हम AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BD का वैल्यू हमारा यहां है, तो हम रखेंगे यहां पर BC माइनस CD अपॉन AD को हम जैसे बताया कि AD इज इक्वल टू OC है, ओके। तो हम यहां पर OC लिख सकते हैं, ओके। अब हम यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि AO इज इक्वल टू
ओ सी इज इक्वल टू टाइम टी। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहां पर हमारा आ गया a इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। बी सी मैंने बताया कि बी से सी तक, यानी ये जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो बी से सी तक है ये, राइट। तो ये फाइनल वेलोसिटी यानी v है बी सी। तो हम लिखेंगे v माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, dc या cd। हम देखते हैं कि a टू o जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी हम dc के बराबर होगा साइड ao, सो वी कैन राइट इक्वल टू ao इज इक्वल टू cd। सो हियर v minus u upon OC is equal to nothing but here t. So we can write it as t. Here you can write that CD is equal to OA. Right? Hence CD is equal to OA. Then नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मिलेगा हमें v माइनस यू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें दूसरा स्टेप सब करेंगे कि इसको अरेंज कर लेंगे हम। तो इसको अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन जो करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करना है। तो यहां पर होगा हमारा, पूरे को हम इधर ले लेते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और v हमें फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू, अब u जो है वो माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो ए टी प्लस यू हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये इक्वेशन डिराइव हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। तो इस तरह से ये सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना है कि पहले ही यहां से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे, और बनाने के बाद इसको फिर हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहां ए से डी तक मिला देंगे, फिर इस पॉइंट को इमेजिनरी करके यहां पर हम ई रख देंगे, ओके पॉइंट, और बी से सी तक यहां तक हमें मिलाना है। तो जैसे बताया था कि ये हो जाएगा इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी लाइन यहां सिर्फ बी से ई तक ही ड्रॉ करना है, बाकी तो ये जो फॉर्म हुए, सो रेस्ट ऑफ यहां पर फॉर्म हुए हैं रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल की साइड्स हमें मालूम है कि ए जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एओ जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, और उसी तरह से एडी जो होगा वो ओसी के बराबर है, जैसे मैंने सभी में किया है। स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो जो ए बी जो होता है वो स्लोप है, और यही स्लोप जो है एक्सेलरेशन होगा। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी मीन्स कहां तक ये स्लोप उठा हुआ है, तो ये स्लोप देख रहे हो ये है, ये पूरा ये स्लोप इसको बोलते हैं। तो ये कहां तक उठा है, बी तक, तो ये हम इसमें ले रहे हैं स्लोप, तो ये हो जाएगा बी डी। तो बी डी अपॉन ए डी, ये कहां तक ये गया है, ये एडी हो जाएगा। अब इसमें हमने सिर्फ रख दिया है वैल्यू बीडी का, तो बीसी इज इक्वल टू हमने लिखा है, बीसी इज इक्वल टू क्या, हम बीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं दो पार्ट में बीडी प्लस सीडी, यानी 5 को हम सिंपली कहें तो 10 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, 5 + 5 या 7 + 3। उसी तरह से ये है बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी। तो हमने क्या किया, हमें बीडी की जरूरत था, हमने बीडी यहां फाइंड कर लिया जैसे बताया था। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नाउ हियर डन। नाउ सेकंड इज इक्वेशंस ऑफ सेकंड, वी विल ऑल्सो सी
सेकेंड भी हमें क्या कौन सा इक्वेशन ऑफ करना है, सेकेंड वाला पार्ट जो था वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन है, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है उसका दूसरा नाम, बिकॉज इन एग्जाम इट इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली। तो सेकेंड इक्वेशन हम करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कहते हैं, दूसरा जो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि सेम ही टाइप का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहां से ये वेलोसिटी है जो जा रहा है, ओके, और फिर इसको हम मिला देंगे। फिर यहां से ये पार्ट को हम सेपरेट करेंगे और इसको हम एक मिला देंगे। तो यहां पर हमारा सिमिलरली फॉर्म हुआ, फिर यहां पर भी इमेजिनरी लाइन वो रख देंगे। ओके, इसका जो नाम जैसे था वो हम रख देंगे O, और ये T है, राइट, सॉरी ये C है, और इसको हमने टाइम T लिया है। यहां है A, और यहां से यहां तक ये इनिशियल वेलोसिटी था, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां से ये यहां तक ये फाइनल वेलोसिटी है, राइट। इसके बाद ये हम ले लेंगे जैसे D लिया था वैसे ही, और ये हो जाएगा हमारा B। ओके, अब इसमें हमें करना क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमें इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन फाइंड करना है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस जो भी इनक्लोज्ड एरिया है, अगर एरिया इनक्लोज्ड देखे तो ABCO, इसका अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे, ये जो भी फिगर इनक्लोज्ड है इसका अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन। बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है कि एरिया अंडर द स्लोप क्या है, पहले है AOBC है, AOBC, AO और BC। तो हम क्या करेंगे कि AOCB ले लेंगे, यानी एरिया अंडर इनक्लोज्ड फिगर, यानी इस फिगर के अंदर जो भी एरिया इनक्लोज्ड है वो हमारा हो जाएगा क्या है, एरिया अंडर इनक्लोज्ड फिगर क्या है देख लो एक, हाँ इसको ये होगा A, ये पूरे फिगर के अंदर क्या है एरिया इनक्लोज्ड, यही है हमारा एरिया जो कि पूरा इनक्लोज्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसी का एरिया अगर फाइंड कर लेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा AOCB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें हमारे पास दो चीज यहां पर है, एक तो रेक्टेंगल है और एक एरिया है, यानी दोनों एरिया का हम फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये एरिया ऑफ AOCB, मींस एरिया ऑफ एरिया अंडर इनक्लोज्ड फिगर जो है वो हमें मिल जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस। हमारा ऑब्जेक्ट जो हुआ, सपोज कि यहां से इनिशियल वेलोसिटी हुआ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट किया तो ये फाइनल यहां तक किया, तो आखिर ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो हमें फाइंड करना है। तो AOCB हो जाएगा यहां पर, और हम लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
यानी यही दोनों का हमें फिगर का एरिया फाइंड करना है, तो हमें इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। करेक्ट। अब सिंपल सी इसमें है चीज कि हम करेंगे क्या। अब इसमें हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने ये लिया है, ये टोटल डिस्टेंस सपोज कर लेना है कि हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ले लिया है, क्या हमने लिया है, एस। हमने क्या लिया है, एस। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय ए ओ सी डी। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां कि टोटल डिस्टेंस, या ऊपर ही कहीं आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो सिर्फ आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है। यहां पर लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस, सॉरी यहां पर लिख लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने लिया है एस, और ये एस जो है वो एरिया ए ओ सी बी के बराबर है। तो अब हम अगर फिर से ये वही लें कि ए ओ सी बी को हम क्या ले लें, एस ले लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए ओ इंटू सी ओ सी, राइट, ओ ए इंटू ओ सी। हम ओ ए इंटू ए डी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमें ओ सी के बराबर करना होगा, बिकॉज ए डी जो है ये दोनों इक्वल हैं, ये भी इक्वल है। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है कि क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, देख सकते हो एडी है, और हाइट जो है वो पूरा क्या है, हाइट जो है वो बीडी है। तो हम बीडी को बेस पहले लिख दे एडी इंटू बीडी, करेक्ट। अब बीडी को हमें फाइंड इसमें फिर से करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहां पर पहले वही हम लिख लेते हैं, सिंस बीडी इज इक्वल टू, जैसे पिछले इक्वेशन में किया था, बीडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब हम बीसी को लिख सकते हैं, क्या चीज, बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस CD लिखा। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, अब BC माइनस CD इज इक्वल टू BD हो गया। अब इस BD का वैल्यू हमें रखना है यहां पर। ओके, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, तो यहां पर हमें मिल क्या जाएगा, S दैट इज AO CB को हमने क्या लिया है, S के बराबर लिया है, तो इसको हम S लिख देंगे, या आप डायरेक्टली इसको S लिख सकते हो। S इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AO इंटू OC प्लस हाफ AD इंटू BD। अब BD का जो वैल्यू है हम यहां पर रखेंगे, BD इज इक्वल टू, हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपको बता दूं BD इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने जो देखो BC जो है वो टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस जो है, सॉरी टोटल जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक ये हमें लेना है BC। तो ये क्या है, तो ये यहां तक वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो यानी V हम लिखेंगे BC की जगह पर V माइनस, और CD जो है देख सकते हो CD जो है AO के बराबर है,
तो AO क्या है यहां, U के बराबर है, तो V माइनस U, यानी BD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस U। अब इसको हमें रख देना है, ये हमें इसमें रख देना है, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा AO, हमने क्या लिया है, AO यहां ऑलरेडी दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, तो U रखेंगे, OC जो है वो T के बराबर है, तो T रखेंगे प्लस हाफ AD क्या है, AD हम देखते हैं कि AD जो है हमारा T के बराबर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू OC, राइट। तो AD इज इक्वल टू OC, यहां पर हम T भी लिख के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये T हो जाएगा, यानी ये जितना होगा साइड उतना साइड, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि साइड्स इक्वल होती है, तो यहां 1/2 AD को हम OC के बराबर लिख देते हैं, यहां T हम लिख देंगे, और BD जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, V माइनस U, करेक्ट, ये हमारा हो जाएगा V माइनस U, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BD यहां पर हम थोड़ा सा लिख देंगे कि AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन हमें नहीं हो। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड आउट, नाउ वी विल ऑल्सो राइट वन मोर थिंग्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर V माइनस U को अगर हम देखें तो यहां पर इस फिगर से हम फाइंड कर सकते हैं कि BC माइनस CD जो V माइनस U किया है, उसको हम कैसे, V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि हमें V माइनस U तो हमें ऑब्टेन करना ही नहीं है, तो हम यहां पर एक चीज जो आपको बता दूं, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ये तो हमारा हो गया, हम इधर साइड में लिख सकते हैं या यहीं लिख सकते हैं कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T, राइट। तो हम यहां क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U, राइट। ये एक, अब हम करेंगे क्या, हमें V माइनस U की जगह पर AT रख देंगे, सिंपल। तो हम इस इक्वेशन में नाउ S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा UT प्लस हाफ T और V माइनस U। V माइनस U जो है हम यहां पर AT की जगह पर V माइनस U का वैल्यू रख देंगे, मींस V माइनस U की जगह पर AT हम रख देंगे, सो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ V माइनस U की जगह पर ये, तो एक T है और इंटू AT, तो हमारा क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A और T इंटू T स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। थोड़ा अच्छे से यहां AT स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। यानी हमारा जो था सेकेंड, वो क्या था, टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशंस भी हमने यहां पर एस्टैब्लिश कर दिए हैं, हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो सेम ही पर है, बट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू स्टे सेफ, थैंक यू।